Today we are going to discuss empiricism. Before empiricism, we have discussed idealism and existentialism. So we'll just briefly recall what these philosophies are and then we'll move on with empiricism. Idealism is the philosophy that ideas are the absolute reality and ideas are everything. Ideas come in the mind, they are originated in the mind, and with the help of these ideas, we create or make sense of the material world around us. There were very different degrees of idealism: subjective idealism, objective idealism, absolute idealism, in which different idealist philosophers argued that how ideas are part of reality, ideas are absolute reality, and another. Then we studied existentialism, which focused on the existence of an individual, and the catchphrase for existentialism was existence precedes essence. That we human beings are inherently alone, there is nothing before us, there is nothing after us, and when we come into this world, we create our own life, our own nature by the results of the choices which we make and the experiences we encounter. So, existentialism philosophy is a philosophy which focuses on individualism. And third philosophy is empiricism. So empiricism is starkly opposite to the philosophy of idealism. Empiricism idealism से बिल्कुल opposite है, because empiricism gives importance to the experience. The center point, the standpoint of empiricism is experience. That experience is results all the reality, all the knowledge. All knowledge of this world or any world comes from experience, direct experience. We human beings are blessed with five sensory senses. We have sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of touch. With these five senses, we experience, we observe, we explore the world around us. And the knowledge which we gain from this observation, exploration, experimentation is the only and real knowledge according to empiricist philosophers. Let's see what is empiricism. Empiricism is the theory that the origin of all knowledge is sense experience. As I have said, that all knowledge comes from the sensory experiences. जितना भी हम knowledge हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, वो हमारी जो हमें 5 senses हमें जो gift की गई हैं, उनकी मदद से ही हम सारा experience जो है knowledge gain करते हैं. It emphasizes the role of experience and evidence, especially sensory perception, in the formation of ideas, and argues that only knowledge humans can have is a posteriori. So, पहली बात empiricism में that all knowledge come from sensory experiences. Number 2, all knowledge तब तक knowledge का स्टेटस नहीं हासिल करेगा जब तक वो किसी एक्सपीरियंस, तजर्बे, एविडेंस, सबूत से नहीं आएगा. दैट मीन्स आइडियाज़ आर नॉट इनफ, आइडियाज़ आर एब्स्ट्रैक्ट, दे आर जस्ट इन हेड. Until and unless ideas are put into use, ideas are put into experiments, we have an experimental knowledge, then only an idea can attain the status of knowledge. सो एम्पिरिसिज्म में सबसे पहली बात यह कि नॉलेज आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस से हासिल होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आता है. नंबर 2, नॉलेज को हम नॉलेज का स्टेटस, इल्म का स्टेटस तभी देते हैं जब हमें वो एक्सपीरियंस और एविडेंस से मिलेगा. नंबर 3, ऑल नॉलेज इज़ पोस्टीरियोरी. पोस्टीरियोरी का मतलब है कम्स आफ्टर. दैट मीन्स एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन नॉलेज. पहले एक्सपीरियंस आप करेंगे और वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आएगा? दिस एक्सपीरियंस यील्ड्स फ्रॉम सेंसरी सेंसेस. आप अपने 5 सेंसरी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जितना एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस की लाइट में यू क्रिएट नॉलेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस जो है वो इट्स वेरी कोल्ड, बट यू डू नॉट नो अंटिल यू टच इट. जब आप आइस को टच करते हैं, विथ सेंसरी सेंसेस बीइंग इन्वॉल्व, सेंस ऑफ टच, अपने सेंस, जब अपने आइस को, बर्फ़ को हाथ लगाया, आपकी सेंस ऑफ टच ने आपको बताया दैट इट इज़ कोल्ड. एक सेंसरी स्टिमुलस आपके दिमाग तक गया, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई कि आइस जो है वो कोल्ड होती है. ठीक है, तो पहले एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस की लाइट में नॉलेज क्रिएट हुआ. आपके माइंड ने नॉलेज क्रिएट किया, एक नॉलेज का एक पीस क्रिएट किया दैट आइस इज़ कोल्ड.
इसी तरीके से आप जब आग में हाथ देते हैं या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, यू डू नॉट नो इट इज़ हॉट। जब तक आपको हाथ लगा लेंगे, आप आग में हाथ डाल देंगे या गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे, तो आपको आपका सेंसरी सेंस, आपका जो टच का सेंस है वो आपको बताएगा कि ये गर्म है, आपका हाथ जलेगा, आपको गर्म फील होगा। वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक जाएगी। एक्सपीरियंस हुआ, आपका हाथ जला, इन्फॉर्मेशन माइंड तक गई, नॉलेज क्रिएट हुआ दैट फायर इज़ हॉट एंड फायर बर्न्स। तो आपने अपना हाथ उससे दूर रखना है। वंस यू हैव लर्नड दिस नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, फिर आप कभी ये गलती दोहराएंगे नहीं, अब फिर अपना हाथ जो है आग भी नहीं देंगे। एंड दैट इज़ व्हाट नॉलेज इज़, दैट बिकॉज नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, तजर्बे से, मुशाहिदे से नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं, तो फिर वो नॉलेज आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाता है एंड इट अटेन्स द स्टेटस ऑफ नॉलेज। सो वी हैव डिस्कस्ड the definition of empiricism. Moving on, most empiricists also discount the notion of innate ideas or innatism, and the idea that the mind is born with the ideas of knowledge and is not a blank slate at birth. So बहुत सारे empiricist philosophers say that we human beings are born as blank slates, empty slates. We are born as empty. Our minds are empty. There are no ideas, no concepts, nothing about how we have to live this world. जब एक बच्चा पैदा होता है, he or she is born as a empty slate. टबूला रासा का वर्ड आगे उसके लिए यूज़ होगा। और इनेटिज्म का मतलब है, कुछ फिलोसोफर्स आर्ग्यू करते हैं that we human beings are born with certain concepts. कुछ ख्यालात, कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में ऑलरेडी होता है और उनकी मदद से हम अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, जैसे कि नॉलेज ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ लाइफ। लेकिन एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। दे से दैट वी ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न एज एम्प्टी स्लेट्स with no inherent knowledge, with no concepts in our mind. Our minds are completely empty. हमारे दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। And when we start growing up, we start to learn and experience and observe the world around us by the help of 5 sensory senses. और इन 5 senses का इस्तेमाल करते हुए we start learning, और फिर हमारे माइंड में concepts और ideas generate होना शुरू हो जाते हैं। Okay, then empiricism says that knowledge, how do we attain these experiences or knowledge? We attain experiences or knowledge through inductive and deductive reasoning. एम्पिरिसिज्म में नॉलेज हासिल करने के लिए के 2 मेथड्स हैं। वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग एंड अदर इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग विच मीन्स दैट यू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। आपने किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को जो है स्टडी किया और वहाँ से आपने एक जनरल ऑब्जर्वेशन की तरफ, एक्सपेरिमेंट की तरफ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द स्प्रिंग सीजन यू गो इन टू योर गार्डन, आप बाग में जाते हैं, आप देखते हैं गुलाब का फूल खिला हुआ है, आप कहते हैं अच्छा स्प्रिंग में जो है रोजेस ब्लूम इन स्प्रिंग। लेकिन यू मूव लिटिल फॉरवर्ड एंड यू सी गार्डेनिया, अनदर फ्लावर, एंड यू सी इट ब्लूमिंग टू। आप कहते हैं चलें भाई, स्प्रिंग का सीज़न है, गार्डेनिया भी शायद इसी सीजन में ब्लूम करता है। देन यू लुक एट अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर, एंड यू सी ऑल द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। देन आप स्पेसिफिक क्या था, आपने रोज़ को जो है खिलते हुए देखा, लेकिन आप जनरल क्या आपने देखा, तमाम फूल जो है बाग में खिल रहे हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। तो एक ऑब्जर्वेशनल, एक नॉलेज आपका माइंड जो है इस नॉलेज को प्रोसेस करेगा। सेंसरी सेंस से, दिमाग आपने अपने सेंस ऑफ साइट से, आँखों से आपने देखा तमाम फूलों को खिलते हुए, और ये तमाम सेंसरी नॉलेज आपके माइंड में गया, वहाँ प्रोसेस हुआ, और आपके माइंड ने एक पीस ऑफ नॉलेज क्रिएट किया कि मे बी स्प्रिंग का और फ्लावर्स ब्लूमिंग का आपस में कोई लिंक है, कि बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नॉलेज है? इंडक्टिव रीजनिंग, दैट यू आर मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। और इसके अपोजिट है अनदर फॉर्म ऑफ नॉलेज, डिडक्टिव रीजनिंग, कि आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जिसमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आप मूव करते हैं, तो उसमें आप यू मूव फ्रॉम जनरल बॉडीज़ ऑफ नॉलेज, जनरल ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तमाम परिंदे उड़ते हैं, ऑल बर्ड्स फ्लाई, एंड बर्ड्स फ्लाई बिकॉज दे हैव फेदर्स, एंड देन स्पैरो इज़ अ बर्ड एंड स्पैरो हैज़ फेदर्स, सो स्पैरो ऑल्सो फ्लाइज। तो आप ऑल बर्ड्स से आप मूव किए और आपने ट्रिकल डाउन किया टू
वन बर्ड, वन स्पेसिफिक बर्ड। लेकिन ये नॉलेज आपका थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकता है। ऑल बर्ड्स फ्लाई, ऑल बर्ड्स हैव फेदर, ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड, शुतुरमुर्ग एक परिंदा है, उसके फेदर भी हैं, बट इट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, तो आप ऑस्ट्रिच तक पहुंच गए, लेकिन ऑस्ट्रिच तो उड़ नहीं सकता, हालांकि उसके पर भी हैं। देन यू मूव इनटू अनदर फॉर्म ऑफ रीजनिंग, आप उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट all knowledge which we are attaining either is coming from deductive reasoning or inductive reasoning, and it is bound with experience and observation। तजर्बा और मुशाहिदा जो है बहुत ज़रूरी है। आप अपने साइंस की बुक्स में भी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग्स के बारे में पढ़ा है। दिस इज़ हाउ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक थियरीज आर क्रिएटेड। मूविंग ऑन, एम्पिरिसिज्म को बहुत बार जो है रैशनलिज्म के साथ भी जो है इक्वेट किया जाता है, दैट एम्पिरिसिज्म इज़ एक्चुअली रैशनलिज्म, बट देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म। while empiricism focuses on experiences, sensory senses, direct observation, rationalism focuses on logic and rational logic। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है और इसलिए इनको हम सेपरेटली स्टडी भी करेंगे। द वर्ड एम्पिरिसिज्म इट कम्स फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड एक्सपीरियंस एंड एम्पेरिक। दो डिफरेंट वर्ड हैं। एक्सपीरियंस का मतलब तजर्बा हासिल करना, एम्पेरिक का मतलब ऐसा आदमी जो ऐसा नॉलेज जो प्रैक्टिकली ही अटेन किया जाए। अगेन मैं बता दूँ, एम्पिरिसिज्म इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ आइडियलिज्म, क्योंकि आइडियलिज्म में तो ऑल फोकस इज़ ऑन आइडियाज़, और आइडियाज़ तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, दिमाग में आते हैं, उन्हें आप देख नहीं सकते हैं, उन्हें सिर्फ आप सोच सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिज्म, आइडियाज़ जो है ना आपको बाद में आते हैं, पहले नॉलेज होता है, पहले आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस से, मुशाहिदे से, तजर्बे से आप नॉलेज क्रिएट करते हैं, और उस नॉलेज की मदद से आपके दिमाग में फर्दर आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। लेट्स मूव टू द हिस्ट्री ऑफ एम्पिरिसिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ टबूला रासा, which has been developed as early as the 11th century by the Persian philosopher Ibn Sina. Ibn Sina was the first person to talk about the philosophy of empiricism in 11th century. He was a Persian philosopher, और उन्होंने वर्ड जो है दिया था इस फ़िलासफ़ी को, टबूला रासा। टबूला रासा का मतलब है कोरा कागज़, खाली तख्ती, empty slate, that we human beings are empty slates when we are born in this world. There are no inherent ideas, कोई हमारे दिमाग में ख्याल, आइडियाज़ नहीं होते हैं, और हम जो हैं बाद में इस लाइफ में तजर्बा, मुशाहिदे की हेल्प से, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशंस की हेल्प से जो है नॉलेज क्रिएट करते हैं और नॉलेज लर्न करते हैं। इसी चीज़ को फर्दर एक्सपेंड करते हुए 20th सेंचुरी में अरबिक फ़िलासफ़र थे इब्न तुफ़ैल। ही सेड दैट ही इलस्ट्रेटेड, एक्चुअली उन्होंने जो है इसको शो कराया थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स के हाउ वी ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न एज एम्प्टी स्लेट्स। ही सेड एक बच्चे को अगर आप जंगल में भी छोड़ देंगे, व्हेन यू लीव अ चाइल्ड इन अ फॉरेस्ट विदाउट द गाइडेंस ऑफ एन एल्डर, और वो वहाँ पे अकेला भी सर्वाइव कर जाएगा। वाई? बिकॉज आपके 5 सेंसेस ही आपको हेल्प करते हैं नॉलेज लर्न करने में। व्हेन दैट चाइल्ड, व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फेंट होता है बिल्कुल मासूम छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता। चाइल्ड जो है इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो है एन इन्फेंट। तो एक बच्चे को जब आप जंगल में छोड़ेंगे, तो जब उसे प्यास लगेगी वो अपने लिए पानी भी ढूंढेगा, भूख लगेगी तो वो अपने लिए खाना ढूंढेगा। अगर वो लकड़ी खाएगा तो पता चलेगा वो लकड़ी नहीं खा सकता, घास नहीं खा सकता, अनटिल अनलेस वो किसी फ्रूट नट तक पहुंच जाएगा तो उसे पता चलेगा ये चीज़ मैं खा सकता हूँ, इट विल सेशिएट माई हंगर। इसी तरह से उस बच्चे को जब सर्दी लगेगी, ही और शी विल लुक फॉर शेल्टर, गर्मी लगेगी तो विल लुक फॉर शेडो। ठीक है, अगर ख़तरा महसूस होगा तो सेफ्टी की तरफ सेफ्टी ढूंढेंगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ चाइल्ड learns, and Ibn Tufayl said that this is how our ancient hunting and gathering societies learned। इंसान कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गारों से और जंगलों से तो उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, तो उसने अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से ही ये चीज़ें सीखी। ठीक है, उसने अपने जानवरों से दिफा करना भी सीखा, अपने आप को डिफेंड करना भी सीखा, अपने आप को सेफ रखना भी सीखा, अपने आप को प्रोटेक्ट और शेल्टर करना भी सीखा। और ये जब वो नॉलेज लर्न करता गया, ये नॉलेज उसके दिमाग में स्टोर होता गया, इस नॉलेज ने उसे और आइडियाज़ दिए जिससे वो सोसाइटीज़ और हाउसेज और इन सब में जो है ट्रांसफ़र हो गया जंगलों से। ठीक है, सो इट इज़ अ एक्सपीरियंस, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन विच मूव्स अस और प्रोवाइड्स अस more ideas to propel forward, to move forward।
उसके बाद वी हैव सर फ्रांसिस बेकन, एंड इफ़ यू गाइज हैव स्टडीड प्रोज, और प्रोज में अपने फ्रांसिस बेकन को पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव कम टू नो दैट ही वाज फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड और ही वाज फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म. एम्पिरिसिज्म अगेन द सेम फिलोसफी विच वी आर लर्निंग. तो सर फ्रांसिस बेकन ने अपनी जो नॉलेज, अपने जो एसेज जो हैं अपनी राइटिंग में भी साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया. आपने बेकन के स्टाइल को देखें, ही मूव्स वेरी जनरली. उसके जब एसेज स्टार्ट होते हैं तो दे आर वेरी अबाउट जनरल आस्पेक्ट्स ऑफ सर्टन टॉपिक, फॉर एग्जांपल स्टडी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन टू द पर्टिकुलर करता है, टू द स्पेसिफिक आइडिया. Then one of the three important philosophers of empiricism are they are British philosophers. They are John Locke, George Berkeley and David Hume. इनके अलावा कुछ हैं, डिस्कार्ट्स है, लेबिन्स है, स्पिनोज़ा है. डिस्कार्ट्स को हम आइडियलिज्म में स्टडी कर चुके हैं क्योंकि ही वॉज लेस एम्पिरिसिस्ट, मोर आइडियलिस्ट. लेबिन्स और स्पिनोज़ा को हम रैशनलिज्म में स्टडी करेंगे. तो 3 इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र्स जो एम्पिरिसिज्म के नाम से जाने जाते हैं, they are John Locke, George Berkeley and David Hume. Let's talk about John Locke. John Locke ने जो empiricism की philosophy है, it came into limelight on popularity in 17th century, especially by after John Locke wrote an essay, और उस essay का नाम था An Essay Concerning Human Understanding. और इसमें जो है जॉन लॉक ने जो इब्न तुफैल का जो आइडिया था टबूला रासा, उसको भी दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया. दैट वी ह्यूमन बींग्स आर एम्प्टी, हम बिल्कुल खाली दिमाग होते हैं, और जब हमें ज़िंदगी में कुछ चीज़ें लर्न करना शुरू करते हैं तो जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू हम नॉलेज लर्न करते हैं, वो हमारे दिमाग में कुछ इम्प्रेशंस, कुछ मार्क्स छोड़ देते हैं. दे आर सर्टन रिफ्लेक्शन लेफ्ट इन आर माइंड. उन रिफ्लेक्शन की मदद से हम मज़ीद नॉलेज क्रिएट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको एक आवाज़ सुनिएगा. ये कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है, ये एक और चीज़ मैंने गिराई है. देयर आर 2 डिफरेंट साउंड्स जो आपने सुनी है, ठीक है, और आपके दिमाग में ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि एक ऑब्जेक्ट की आवाज़ ज़्यादा थी, एक की आवाज़ हल्की थी. आपका जो ऑडिटरी सेंस है, सेंस ऑफ हेयरिंग है, उसने ये आवाज़ सुनी, स्टिमुलस लिया और ये इन्फॉर्मेशन माइंड तक गई, ठीक है. तो एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस क्या था, ये आवाज़ सुनना. और माइंड में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे ये आवाज़ें कुछ मार्क्स छोड़ेंगी. आपका दिमाग सोचेगा कि एक ऑब्जेक्ट की आवाज़ हल्की थी और एक की तेज़ थी, तो मे बी आप योर माइंड, अगर आप देखने के अभी क्योंकि मैंने ये चीज़ें गिराई हैं, आप देख नहीं सकते ये कौन सी चीज़ें गिराई हैं. अगर आपका सेंस ऑफ साइट भी इन्वॉल्व होता तो आप देखते कि जिस ऑब्जेक्ट की आवाज़ ज़्यादा आई वो हैवी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की आवाज़ कम आई वो लाइट ऑब्जेक्ट है. तो आपका सेंस ऑफ साइट, देखने की हिस्स, और सेंस ऑफ हेयरिंग, सुनने की हिस्स की मदद से आपने इन्फॉर्मेशन दिमाग को भेजी, और दिमाग ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की और एक पीस ऑफ नॉलेज क्रिएट किया कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जब गिरते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा होती है, लाइट ऑब्जेक्ट्स जब गिरते हैं उनकी आवाज़ कम होती है, ठीक है. ये नॉलेज क्रिएट हो गया, ठीक है. दिस इज़ व्हाट जो है जॉन लॉक इज सेइंग दैट व्हेन यू एक्सपेरिमेंट समथिंग, इट लीव्स अ मार्क ऑन योर माइंड. एक मार्क, एक मेमोरी, एक नॉलेज पीस वो आपके दिमाग में क्रिएट कर देता है, विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग फर्दर. अब आपको ये एक्सपेरिमेंट हो गया ना, अब आपके सामने अगर ईंट कोई गिरा रहा होगा तो आप मना करेंगे, स्पेशली अगर वो अपने पाँव पे गिरा रहा होगा, क्योंकि आपको पता है ईंट, ब्रिक इज़ वेरी हैवी, और जब वो गिरेगी तो कितना दर्द और कितना आवाज़ आएगी, ठीक है, इंसान की भी और ईंट के गिरने की भी. ओके, सो आप मूविंग ऑन. सो लॉक ने ऐसे लिखा था, टबूला रासा को एक्सप्लेन किया और ये कहा कि कोई इनेट आइडियाज़ नहीं होते हैं, एक्सपीरियंसेस के हेल्प से हमारे माइंड में कुछ जो है इम्प्रेशंस क्रिएट होते हैं, कुछ जो हमारे डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे माइंड में कुछ मार्क्स, इम्प्रेशंस छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से हम नॉलेज क्रिएट करते जाते हैं. हाउएवर ही हेल्ड दैट सम नॉलेज, लेकिन उसके साथ साथ लॉक ने जो है ये भी कहा कि कुछ नॉलेज जो होता है वो इंट्यूशन के थ्रू भी होता आता है. इंट्यूशन मतलब इट जस्ट कम्स टू आवर माइंड, इट इज़ नॉट बाउंड विद सेंसरी सेंसेस. उसके बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिलोसोफर, आयरिश फिलोसोफर, जो कि क्योंकि आयरलैंड वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो इसलिए आयरिश फिलोसोफर जॉर्ज बिशप बर्कली को भी हम लोग जो है ब्रिटिश फिलोसोफर कहते हैं. ही
he was also concerned with Locke's view, और ही फेल्ट कि अगर लॉक के व्यू को ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में लेके गया तो वो एथीज़म की तरफ जा सकता है. एनी हाउ बर्कले ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था इन हिज एक ऐसे उसने लिखा था, ट्रीटाइज कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन 1710, and in which he gave us the knowledge, he told us, इस चीज़ को हमने पढ़ा था आइडियलिज्म में भी, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म या फिर एम्पिरिकल आइडियलिज्म, दैट देयर आर सर्टेन नॉलेज, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो हमारे दिमाग में गॉड गिवन होते हैं, ठीक है. और ही ऑल्सो सेड कि हम इस दुनिया को अंडरस्टैंड करने के काबिल ना होते, वी वुडंट हैव बीन पॉसिबल, वी वुडंट हैव बीन able to understand this world if God hasn't enabled us. क्योंकि he was a bishop, वो एक religious person भी था, तो उसका ज़्यादा फोकस God की तरफ था, और गॉड ने कैसे हमें इनेबल किया नॉलेज लर्न करने में, एक्सपीरियंस अटेन करने में. सो अकॉर्डिंग टू हिम, बर्कले को हमने आइडियलिज्म में भी पढ़ा था, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी बर्कले ने, और यहाँ पे एम्पिरिसिज्म में आप उसी फ़िलासफ़ी को एम्पिरिकल आइडियलिज्म कह सकते हैं. दैट इट इज़ गॉड हु हैज़ गिफ्टेड अस दिस 5 सेंसेस, एंड बिकॉज गॉड वॉन्ट्स अस टू लर्न दिस नॉलेज, खुदा चाहता है कि हम ये इल्म हासिल करें, ये एक्सपीरियंसेस हासिल करें. दैट्स वाई ही हैज़ इनेबल्ड अस टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, गिवन अस दिस 5 सेंसेस. इन 5 सेंसेस की मदद से हम दुनिया को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और नॉलेज क्रिएट करते हैं. अगर आप बेकन का ऐसे ऑफ ट्रूथ रिकॉल करें तो उसमें बेकन ने जो है इस दुनिया के क्रिएशन के बारे में बताया था, दैट दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड गॉड गेव अस 5 सेंसेस. उस इन 5 सेंसेस का क्या मकसद है, वाई वी हैव बीन गिवन दीज 5 सेंसेस. ये 5 सेंसेस हमें इसलिए दिए गए हैं दैट वी विल लुक इनटू दिस वर्ल्ड, विल एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, विल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व दिस वर्ल्ड, एंड वी विल फाइंड द रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड आर गॉड्स एग्जिस्टेंस. जब हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया को स्टडी करते हैं, इट गिव्स अस नॉलेज नॉट ओनली अबाउट अस, not only about the life we live, but it also tells us that there is someone who created everything, there is someone who created us, who enabled us to learn this much. ठीक है. So according to Berkeley, it is all possible because of God. कि ये जितनी भी perceiving है, हम इस दुनिया को जितना भी समझते हैं, वो क्यों है, क्योंकि एक perceiver ने, एक डिवाइन एग्जिस्टेंस ने हमें इनेबल किया है, हमें ये सेंस दी है, हमें ये हिम्मत और ताकत दी है, ये एबिलिटी दी है टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड. ठीक है. और जो है ही ऑल्सो सेड दैट वी ह्यूमन बींग्स कैन फाइंड गॉड इन नेचर, कि ये जो नेचर है खुदा का बनाया हुआ है, तो हम जब नेचर को स्टडी करेंगे एवरीथिंग स्पीक्स फॉर गॉड. और इसी चीज़, यही फ़िलासफ़ी सिमिलर है बर्कले ने जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दी थी एम्पिरिसिज्म में, उसको एम्पिरिकल आइडियलिज्म बोलते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू द थर्ड फिलासफ़र, इट्स डेविड ह्यूम. ही वाज स्कॉटिश फिलासफ़र, और स्कॉटलैंड भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, इसलिए हम उसको ब्रॉडली ब्रिटिश फिलासफ़र बोलते हैं. The Scottish philosopher David Hume brought to the empiricist viewpoint an extreme skepticism. David Hume बहुत extreme form of skepticism था कि everything has to come from experience, कोई idea की कोई possibility नहीं है. He argued that all of human knowledge can be divided into 2 categories: relations of ideas and relations of ideas क्या हैं, propositions involving some contingent observation of the world such as the sun rises in the east, and matters of fact, mathematical and logic proposition. कि इंसानी नॉलेज 2 तरह का होता है. एक तो होता है relations of ideas कि आप कड़ी से कड़ी मिला के इल्म हासिल करते हैं, और दूसरा कुछ नॉलेज होता है वो फैक्चुअल नॉलेज होता है. ठीक है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर के कैसे ये दोनों पीसेस ऑफ नॉलेज रिलेटेड हैं. ठीक है. आप रोज़ सुबह उठते हैं एंड यू लुक एट द सन, एक साइड से निकलता है, रात तक वो दूसरी साइड से गायब हो जाता है, फिर अगली सुबह ऐसा, फिर अगली सुबह ऐसा. यू कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन सीइंग दिस, आप बार बार ये होता देखते हैं. ठीक है. तो आप एक आपके दिमाग में फैक्ट रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ बन गई, दिन की, सूरज तलू होने की, सूरज गरूब होने की, ये डिफरेंट आइडियाज़ का एक कड़ी से कड़ी मिलेगी, तो आप कहेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, और इतनी देर के लिए ऐसे ऐसे. ठीक है. ये आपने नॉलेज क्रिएट किया. अब इसमें मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, जब ये नॉलेज काफ़ी
टाइम ऑब्जर्व करने के बाद सेम रहेगा कि कहीं भी चले जाओ, एनी पॉइंट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, माउंटेन, प्लेन्स, ओशन, वेयर एवर यू गो, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो फिर जो है दिमाग में एक नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज क्रिएट हुआ और वहाँ से फर्दर उसको प्रोसेस किया जाएगा उस नॉलेज को। सो वन विल कम टू नो, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई नॉलेज और साइंस में, वन केम टू नो दैट वाई इट्स नॉट द सन which is revolving around the earth, it is the earth which is revolving around the sun। तो ज़मीन जो है जब अपना एक टर्न लेती है 360 डिग्री का, ठीक है, तो उसकी वजह से आधी दुनिया में एक वक्त में सूरज नज़र आता है, आधी दुनिया में अंधेरा होता है, वहाँ सूरज गरूब हो चुका होता है। लेकिन एक्चुअली ना तो सूरज गरूब होता है, ना वो ना सन सेट होता है, ना सन राइज होता है, सन अपनी जगह पे स्टैटिक रहता है, क्योंकि ये दुनिया जो है एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, उसकी वजह से जो है दिन और रात का इफ़ेक्ट जनरेट होता है। नाउ दैट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट। आइडियाज़, रिलेशन ऑफ आइडियाज़ से आप कहाँ पहुँचे? मैथमेटिकल, फैक्चुअल, लॉजिकल प्रोपोजिशंस पे। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी लर्न नॉलेज। कॉम्प्लेक्स नॉलेज एक होता है सिंपल आइडियाज़ जो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्फ़ को हाथ लगाया, ठंडा लगा, आग को हाथ लगाया, गर्म लगा, दे आर सिंपल आइडियाज़। लेकिन देन देयर आर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। इसको मैं अगर इलिस्ट्रेट करूँ, आपने बर्फ़ को हाथ लगाया तो आपको वो ठंडी लगी, दैट इज़ वन आइडिया। देन आपने उसको थोड़ी देर बाहर रहने दिया बर्फ़ को, इट मेल्ट्स, इट टर्न्स इनटू वाटर। उस वाटर को आपने आग पे रखा, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड इट इवेपोरेट्स। आपके सामने 3 डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट हुए, फ्रोज़न वाटर, लिक्विड वाटर, इवेपोरेटेड वाटर, बॉइलिंग वाटर एंड इवेपोरेटेड वाटर। आपने 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर स्टडी की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जब वो जमा हुआ था, लिक्विड जब वो पिघल चुका था, एंड गैस व्हेन इट इवेपोरेटेड। ठीक है, दिस सिंपल आइडिया था। बर्फ़ ठंडी होती है, उसको आग पे रखो पिघल जाती है, बॉईल करो तो एवेपोरेट हो जाती है। दिस आर सिंपल आइडियाज़। बट व्हेन यू कनेक्ट दिस सिंपल आइडियाज़ और साथ में आप टेम्परेचर भी नोट करें तो पता चलेगा 100 जो है 0 डिग्रीज़ पे जो है वाटर फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, 100 डिग्रीज़ पे वाटर बॉयल होकर गैस बन जाता है। ठीक है, 1 डिग्री से ऊपर बर्फ़ पिघल के वाटर बन जाती है। सो सिंपल आइडियाज़ थे। पहले आपने सिर्फ बर्फ़ का पिघलना, एवेपोरेट होना देखा, लेकिन जब आपने टाइम भी साथ में मॉनिटर किया, टेम्परेचर भी मॉनिटर किया, तो आपको पता चला कि वाटर की 3 स्टेट्स हैं। नाउ दिस इज़ मैटर ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि 100 डिग्री से वाटर बॉयल होगा, 0 डिग्री से वाटर फ्रीज़ होगा, 0 डिग्री से नीचे बिल्कुल फ्रोज़न होगा, 0 डिग्री से ऊपर वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, 100 डिग्री से वो बॉयल होना शुरू होकर गैस बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ मैटर ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस पूरे प्रोसेस की। ठीक है, और मज़ीद जो है डेविड ह्यूम ने क्या कहा था? पहले तो उसने कहा कि तमाम नॉलेज रिलेशन ऑफ आइडियाज़ है और मैटर ऑफ फैक्ट है। 2 तरह का नॉलेज होता है, एक आइडियाज़ कड़ी से कड़ी हम मिलाते हैं और दूसरा फैक्चुअल साइंटिफिक मैथमेटिकल नॉलेज होता है। मूविंग ऑन, ही सेड दैट आइडियाज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम आर इम्प्रेशंस और सेंसेशंस। कि पहले हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है, उस इम्प्रेशन की मदद से हम एक आइडिया जनरेट करते हैं। आइडिया पहले नहीं आता, पहले एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की मदद से हमारे दिमाग में इम्प्रेशन क्रिएट होता है, सेंसेशन क्रिएट होती है और उसकी वजह से हम मज़ीद आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। In the face of this, he argued that even the most basic belief about the natural world or even the existence of the self cannot be conclusively established by reason, but we accept them anyway because of their basis in instinct and custom। कि हम इंसान के अंदर जो है ना रीज़न, वजह ढूंढने की जो है एक कैपेबिलिटी है, दैट वी ऑलवेज लुक फॉर लॉजिक एंड रीज़न। और नेचुरल वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करते हुए वी ऑलवेज लुक फॉर कॉज एंड इफेक्ट, किस वजह से ये चीज़ हुई, किस वजह से हुई, एंड दैट लुकिंग फॉर रीज़न मूव्स आउट, मेक्स अस एम्पिरिसिस्ट, और एक एक्सट्रीम फॉर्म हो जाती है रैशनलिज्म। मूविंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, he came in the mid 19th century, he took on Hume and Berkeley's reasoning a step further, उनको मज़ीद थोड़ा सा आगे लेके गया, and maintained that inductive reasoning is necessary for all meaningful knowledge, के जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना हर नॉलेज अटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इंडक्टिव रीजनिंग से स्टार्ट हों,
and that matter is merely the permanent possibility of sensation as reported. कि दुनिया जो है he was an extreme form of empiricist. तो ये जो दुनिया है because it has resulted from sensation क्या है, जब भी आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं एक सेंस जनरेट होता है जो आपके दिमाग तक जाता है और बाद में वो प्रोसेस होता है. मूविंग ऑन टू देन लेट 19th and 20th centuries, empiricism से different forms of other philosophy start हुई, rationalism, pragmatism, logical positivism, and we will study these logical empiricism, logical positivism and all in the upcoming philosophies. So here we end empiricism. I hope the lecture has been comprehensive for you. We started with a brief overview of idealism and existentialism, and I told you how empiricism is different from the two, define empiricism, and define what is central in empiricism is experiment, exploration, observation. हम knowledge कैसे attain करते हैं, inductive और deductive reasoning से, कैसे specific से general, general से specific, and from where the term empiricism has come. फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखी, tabula rasa क्या है, empty slate क्या है, innatism क्या है, and then we studied the 3 important philosophers और उनकी philosophies क्या थी. I hope that the whole philosophy, in the entire philosophy of empiricism was is understandable to you now. If there is any problem, you guys can just ask questions in the comments. Have a good day, everyone.